Hello friends, welcome to Raj Malhotra's IAS. So guys, like we tried our level best to give you the live session, but there was some technical error because of which we will not be able to provide you the live session. And today we will get the recorded version of this, okay? So you can watch that recorded version also. So import barriers will not be perpetual, okay? So we will definitely cover this particular news, okay? And this is important for you because things are being cleared. So as you know, government has introduced Atmanirbhar Bharat Abhiyan, okay? Atmanirbhar Bharat Abhiyan, and few countries have raised apprehensions regarding whether India is moving towards protectionism, okay? So this is the thing that has been clarified now by Niti Aayog. So we'll look into it, what exactly they are saying. So new wage code bars the bonus for those facing sex abuse, okay? Sex abuse charges जिनके ऊपर लगते हैं, basically उनको bonus नहीं मिलेगा. Again, this is a good thing and this is the latest development and you should be aware about this, because suppose if you are going to write an answer on women security issue, then definitely you are going to write this thing because latest developments are part of your answers, okay? So ये आपको ज़रूर उसमें लिखना पड़ता है, ठीक है ना? Apart from this there is nothing more much important in this on this page, okay? Then we'll directly move to our editorial page and time for a sponge cities mission in India. So this sponge city thing is again in news, so we will definitely cover this one, and this is important for your urban planning thing, and you can cover this in your GS paper 3, okay? And important topic because last year also sponge cities was in news, this particular topic. So we will cover up this, okay, what exactly this editorial is saying. Then apart from that, we'll move to page number 8, and on this okay, we'll cover up this particular, this in the sense the relevance of this particular news is not much, but you should have an idea about the Pampa river, okay? So for Pampa river thing, this is important, ठीक है ना? उसके लिए important, and we will cover up this thing, okay? Apart from that, on page number 9, this is the political news. Then we'll move to page number 10. So Malabar naval exercise to kick off next week again. Australia is also part of it now, okay? So this is the latest development and how they are, these four countries are trying to counter China. So this is the latest development that you should be knowing. So Supreme Court issues mirror order in child custody case, and देखते हैं middle order वगैरह क्या होता है. We will cover up this thing, okay? CPCB flags pollution control at railway stations. So we will look into this, what CPCB is saying, okay? Central Pollution Control Board. And apart from the effort to import onion prices, so this you have to see, like government, recently 3 farm laws were passed by the parliament, and one of them was related to the Essential Commodities Act. Now this is the problem, okay? Now government has put restriction on hoarding, and other than that they are now importing onions, okay? Because festive season is around the corner, and government do not want people to suffer because of that, ठीक है ना? तो नेफेड के बारे में देख लेंगे, तुम देर इज मतलब माइनर सा कुछ इसके अंदर देखेंगे, ओके? सो अपार्ट फ्रॉम दैट देर इज नथिंग मच ऑन दिस पेज. देन विल मूव टू आवर पेज नंबर 13, ओके? सो व्हेन वी सी दिस अगेन, कल जैसी न्यूज़ आ रही है, सेकेंड अरेस्ट आफ्टर फ्रांस नाइफ अटैक एंड रेडिकलाइजेशन इज एन इशू, एंड फ्रांस इज लाइक putting lot of hard measures, okay? Anti-France protest in Muslim countries, this is bound to happen. तो बांग्लादेश वगैरह में सब हो रहा है, ठीक है ना? सो चलता रहता है ये सब, ओके? सो let's move ahead then. And 15th Finance Commission to hand in report on 9th of November, okay? So what they will say, things will be out, okay? Exactly what are the recommendations of 15th Finance Commission, and this is important for your exam also. So जब आ जाएंगी तब देख लेंगे. एज प्रेजेंट ये इतना कोई खास इसमें है नहीं, ठीक है ना? सो लेट्स स्टार्ट दिस पर्टिकुलर सेशन, एंड दिस इज़ योर डिटेल्ड सेशन. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट, ओके? डिटेल्ड सेशन थोड़ा देख लेते हैं एग्जैक्टली क्या है इसके अंदर न्यूज़ का, ठीक है ना? सो एनी टैरिफ प्रोटेक्शन टू प्रमोट लोकल मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया विल come with an inbuilt sunset clause, okay? What is the sunset clause? Mean even if we are providing some protection measures, some protection to the डोमेस्टिक इंडस्ट्री, बट उसके अंदर सनसेट क्लो होगा. सनसेट इन द सेंस ग्रेजुअली जो है वी विल रिमूव दैट प्रोटेक्शन, ठीक है ना? दिस इज व्हाट नीति आयोग सेइंग, ओके? वी विल रिमूव दैट प्रोटेक्शन, ओके? बट हम लोग ये करेंगे, ठीक है ना? एट प्रेजेंट एज पर द डिमांड वी आर डूइंग इट, क्योंकि हमें अपने डोमेस्टिक जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको एस्टेब्लिश करने का मौका देना है, बट ओवर द टाइम हम डेफिनेटली जो है इसे रिमूव कर देंगे, ओके? ये आइडिया है यहाँ पे. अच्छा, गवर्नमेंट इज सेट टू एक्सटेंड द प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम फॉर मैन्युफैक्चरिंग फार्मास्यूटिकल्स, मेडिकल डिवाइसेज, इलेक्ट्रॉनिक्स अराउंड द, ये सब ये करने वाले हैं, ठीक है ना? तो
आप ये दो लेटेस्ट चीज़ें आप समझिए. ओके, सो इवन इफ वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोटेक्शनिज्म, बट स्टिल वी हैव अ सनसेट क्लॉज सिस्टम. वी विल डेफिनेटली रिमूव दैट इन द कमिंग फ्यूचर. ओके, हम जो है ऐसा करने वाले हैं. एंड आर आत्मनिर्भर सेल्फ रिलायंस मिशन इज नॉट अबाउट क्लोज्ड इकोनॉमी. वी आर नॉट मूविंग टूवर्ड्स क्लोज्ड इकोनॉमी. ऐसा कुछ नहीं करने वाले हम. तो ये आपको समझना है, एंड दिस यू हैव टू मेंशन इन योर आंसर ऑल्सो. सो दिस इज द थिंग. KSDMA justify the removal of sand from Pampa. So Kerala State Disaster Management Authority, they justify the removal of sand from Pampa. Okay, so this is the Pampa river. Okay, third longest river in Kerala after Periyar and Bharatpuzha. Okay, the river is also known as Dakshin Bhagirathi and River Baris. Okay, these are the terms जिसको जो है एक तरीके से पंपा रिवर के लिए यूज़ करते हैं हम. एंड अगेन दिस इज़ important for your prelims. Okay, you can definitely note down all these things for your prelims. आप prelims के लिए उसको रख सकते हो. And the river originates at पुलाचिमिलाई हिल. ओके, एंड ये वेस्टर्न घाट के अंदर है. ओके, ये भी आपको थोड़ा पता होना चाहिए, ठीक है ना. एंड दिस रिवर एम्प्टीज इनटू वेम्बनाद लेक. ओके, सो दिस थिंग ऑल्सो यू शुड नो, ठीक है ना. अगेन इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स. सो दिस इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए पंपा रिवर के बारे में. ओके, सो CPCB फ्लैग पोल्यूशन कंट्रोल एट रेलवे स्टेशन. सो दिस इज व्हाट CPCB सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इज नाउ रिकमेंडिंग. सो दे हैव इंसिस्टेड दैट मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे डिवाइज अ मॉडर्न एनवायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान. ओके, सो एक तो मॉडर्न एनवायरमेंटल प्लान की ज़रूरत है एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रेजेंट सर्कमस्टांसिस. जो है आपको ये प्लान बनाना है, ठीक है, मल्टीपल टाइप के पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए. ओके, देन अगेन CPCB हैज हैड आल्सो कॉल्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ जॉइंट कमेटी कंप्राइजिंग रेलवे एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल बॉडी ऑफिशियल्स. ओके, जॉइंट कमेटी बनाइए. रेलवे स्टेशन के आसपास का एरिया है, उसके अंदर भी पोल्यूशन को आपको कंट्रोल करना होता है. एंड यू नीड टू हैव अ जॉइंट कमेटी जिसके अंदर रेलवे की रिप्रेजेंटेशन हो, स्टेट गवर्नमेंट की रिप्रेजेंटेशन हो, या लोकल ऑफिशियल्स की भी जो है रिप्रेजेंटेशन हो सकती है. ओके, ताकि एक इंटीग्रेटेड वे में आप जो है समस्या का समाधान दे सकें. यू कैन फाइंड द सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम इन एन इंटीग्रेटेड मैनर. ओके, सो एज आई टोल्ड यू, नाउ दे हैव टू इम्पोर्ट अनियंस. ओके, सो जो ये नेशनल एग्रीकल्चर कॉर्पोरेशन मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है, दिस इज द एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मार्केटिंग कोऑपरेटिव्स फॉर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इन इंडिया. ओके, ये आपको पता होना चाहिए. देन आफ्टर दैट मल्टीपल स्टेट्स दे ऑल्सो हैव देयर ओन मार्केटिंग सिस्टम. दैट लाइक हरियाणा हैज़ हेफर्ड. ओके, हरियाणा के अंदर हेफर्ड है, ठीक है ना. सो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए. नाउ दे आर गोइंग टू इम्पोर्ट अनियन बिकॉज फेस्टिव सीजन आ रहा है और सिचुएशन खराब हो सकती है, ठीक है ना. सरकार बुरी लाइट में नहीं देखना चाहती अपने आप को. सो नाउ दिस इज योर एडिटोरियल ऑन योर स्पंज सिटी इंडिया. द आइडिया नीड्स ट्रैक्शन एट अ टाइम व्हेन डिस्कशन ऑन अर्बन फ्लडिंग ओनली रिड्यूसेस द प्रॉब्लम टू सिंपल डायकोटोमीज. ओके, अब ये डायकोटोमीज क्या हैं? देखो, सीन ऐसा है कि हैदराबाद फ्लड आ गई हैं, ठीक है ना. सो उसको जो है यहाँ पे हम लोग कवर करेंगे. ओके, बिफोर दैट उसको यहाँ पे कवर करने से पहले आपको एक चीज़ और बता दें कि इसके अंदर जो है हैदराबाद फ्लड का जो सिस्टम आया था, ठीक है, अब उसके अंदर अनब्रिडल्ड और अनप्रिडिक्टेबल नेचर है हमारा जो भी हम ये चला रहे हैं सिस्टम. इन द सेंस जो रेन सिस्टम चल रहा है क्लाइमेट चेंज की वजह से उसका मेजर इम्पैक्ट पड़ रहा है आपके अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर. और एक तरीके से एग्जांपल था हैदराबाद में जो हुआ. ओके, सो चेन्नई, गुरुग्राम, मल्टीपल आपके पास ऐसे एग्जांपल्स होंगे कि अर्बन फ्लडिंग इज क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम. ओके, अर्बन फ्लडिंग जो है मेजर प्रॉब्लम हो रही है हमारे लिए. सो ऑलमोस्ट 10 years अगो क्या हुआ था? देखिए, एक प्लान जो है बताया गया था हाउ टू मेक हैदराबाद क्लाइमेट चेंज, ठीक है ना, रेजिलियंट. तो ये आइडिया इन्होंने प्रपोज किया था पोट्सडैम इंस्टीट्यूट फॉर क्लाइमेट इम्पैक्ट, बट हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी डिडंट कंसिडर दैट. ओके, दिस इज द प्रॉब्लम हियर बिकॉज लोकल जो आपकी गवर्नमेंट है दे आर नॉट इंटरेस्टेड, दे आर नॉट प्रोएक्टिव. बेसिकली लोकल गवर्नमेंट्स आर नॉट प्रोएक्टिव. ओके, अब इफ थिंग्स वुड हैव बीन डन 10 years बैक देन आपको ये प्रॉब्लम प्रेजेंट ईयर में नहीं मिलती, बट ऐसा जो है इन्होंने जो है नहीं किया. ओके, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस, वो लोग भी एक तरीके से यहाँ पे उनको इंक्लूड नहीं किया जाता हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में. ये मेजर प्रॉब्लम है. ओके, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आपको ये देखना होगा कि रेनफॉल पैटर्न जो है वो बेसिकली बहुत ख़राब हो गया है. ओके, सो रेनफॉल रिसीव्ड इन 2020 हैज़ बीन द हाइएस्ट फॉर मंथ्स ऑफ अक्टूबर इन सेंचुरी. ये यहाँ पे मेजर इम्पैक्ट हुआ है हैदराबाद फ्लड्स का, ठीक है ना. तो अर्बन एरियाज़ के अंदर बहुत ज़्यादा बारिश गिर रही है और चेन्नई, हैदराबाद, गुरुग्राम इसके लाइव एग्जांपल है. ओके, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आप वाटर को डिस्चार्ज नहीं कर पा रहे हो. वाई यू आर नॉट एबल टू डिस्चार्ज द वाटर? बिकॉज वी हैव अ कंक्रीट जंगल. ओके, हर जगह कंक्रीट के जंगल बन गए हैं, ठीक है ना. एंड
वाटर जो है नीचे ग्राउंड वाटर तक, जो एक्वीफायर बोलते हैं जिसे, वहां तक नहीं पहुंच पा रहा है। ओके, वो नीचे तक पर्कुलेट ही नहीं हो पाता, इसलिए वो सरफेस एरिया पे फ्लो करता रहता है और उससे जो है फ्लड की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। ओके, सो वाटर डिस्चार्ज जो है वो होना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे, ठीक है ना। एंड इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो एंटीक्वेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर है, मींस दे डोंट हैव द मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऑल। इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर प्रेशर भी बहुत ज़्यादा है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो रही है, यू नो, या लाइक पीपल आर मूविंग टूवर्ड्स मेट्रोपॉलिटन सिटीज़, ज़्यादातर मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ की तरफ ही लोग मूव कर रहे हैं, उस वजह से प्रेशर भी उनके ऊपर बहुत बढ़ रहा है। ओके, सो दीज आर फ्यू प्रॉब्लम्स दैट आपको समझनी है, ठीक है ना, जो आपको एक तरीके से पता होनी चाहिए इन प्रॉब्लम्स के बारे में। ओके, सो लेट्स देखते हैं इसके अंदर क्या आगे इन्होंने सजेस्ट किया है। ओके, सो ड्रेनेज इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिनेटली वहाँ पे बहुत ज़्यादा ख़राब था, ठीक है ना, और सिटी एकदम से बढ़ गया, रैपिडली लोग मूव कर रहे हैं मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में। इंफ्रास्ट्रक्चर ड्रेनेज सिस्टम आपका उतना अच्छा है नहीं, ठीक है ना, एडिक्वेट ड्रेनेज सिस्टम है नहीं उधर, तो पानी वहाँ पे रहेगा ही रहेगा, भर जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, कम्युनिटीज़ आर लेफ्ट आउट। ओके, सो पीपल पार्टिसिपेशन इज़ अ मेजर प्रॉब्लम हियर, पीपल आर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन दीज एक्टिविटीज़, मैनेजमेंट एंड ऑल। एंड एट द एंड ऑफ द डे ये आपकी जो डिबेट है वो सिर्फ प्राइवेट वर्सेज पब्लिक प्रॉपर्टी बन के रह जाती है। ओके, इंडिविजुअल कंडक्ट वर्सेस फेसलेस गवर्नमेंटल एक्शन, वहाँ तक ये बन के रह जाती है, एंड एफिकेसी जो है किसी भी काम में नहीं आ पाती, स्पेशली योर स्कीम्स एंड ऑल, उसमें नहीं आ पाती। ओके, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वी निग्लेक्ट द इशू ऑफ इंक्रीमेंटल लैंड यूज चेंज। जो मेजरली अब हो क्या रहा है कि वी आर कटिंग डाउन फॉरेस्ट, ठीक है ना, उसकी जगह है हम क्या कर रहे हैं, अर्बनाइजेशन को फैसिलिटेट करने के लिए फॉरेस्ट वगैरह हम लोग कट डाउन कर रहे हैं। ओके, एंड उसका मेजर इम्पैक्ट पड़ता है। और दूसरी चीज़ है वेटलैंड। सी, वेटलैंड प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ग्राउंड वाटर डिस्चार्ज। ओके, ग्राउंड वाटर रिचार्ज, ठीक है ना, उसके अंदर आपके वेटलैंड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नाउ हो क्या रहा है कि रियल एस्टेट, आपको बड़े बड़े मकान बनाने के होते हैं, बिल्डिंग्स बनानी होती हैं, तो वेटलैंड्स को खत्म कर दिया जा रहा है। ओके, यू पिकअप चेन्नई, यू पिकअप मुंबई, एनी मेट्रोपॉलिटन कंट्री, वहाँ सिटी, वहाँ पे जो है आपके वेटलैंड्स जो हैं सबसे पहले कैजुअलिटी होते हैं, उनको सबसे पहले रिमूव किया जाता है, ठीक है ना। सो रोल ऑफ लोकल कम्युनिटीज़ जो है वो मेजर रोल प्ले करते हैं लोकल इकोसिस्टम को मैनेज करने में, ठीक है ना। और फिशिंग होगी, फार्मिंग होगी, वहाँ पे लोकल कम्युनिटीज़ का मेजर रोल होता है। एंड वेटलैंड मैनेजमेंट के अंदर भी आपको लोकल कम्युनिटीज़ को इन्वॉल्व करना चाहिए, ठीक है, बट प्रेजेंटली ऐसा नहीं किया जाता। ब्यूरोक्रेसी इज़ नॉट इंटरेस्टेड टू शेयर इट्स पावर, तो एडमिनिस्ट्रेशन जो है अपनी पावर शेयर नहीं करेगा सिविल सोसाइटी के साथ। तो ये उसका लाइव एग्जांपल है, उसका नुकसान क्या होता है, वेटलैंड आपके खत्म हो रहे हैं, ठीक है ना। सो अर्बन फ्लड ऑफ दिस स्केल कैन नॉट बी कंटेन्ड बाय म्युनिसिपल अथॉरिटी अलोन। ओके, अकेले वो नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा, अब स्टेट गवर्नमेंट के भी हाथ बंधे हुए हैं, लिमिटेशंस हैं, एंड प्रेजेंट सिनेरियो में तो कोरोना भी है। ओके, सो ये सारी समस्याएं हैं, ठीक है ना, फाइनेंसेस इनके पास इतने ज़्यादा नहीं होते। सो एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ सिविल सोसाइटी इज मस्ट, ये तो करवाना आपको पड़ेगा ही पड़ेगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी, ये जो है आपको रिवाइव करनी पड़ेगी, ठीक है ना। सो मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी जो है उसको रिवाइव करना पड़ेगा, और तभी आप जो है अच्छी प्लानिंग के साथ ये जो है चीज़ों को, समस्याओं को दूर कर सकेंगे। ओके, सो दिस इज यू हैव टू मेक योर सिटीज मोर परमिएबल करना पड़ेगा, ताकि पानी जो है नीचे ग्राउंड वाटर तक जा सके। आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर में जो आप मटेरियल यूज़ कर रहे हो वो जो है एक तरीके से ऐसा होना चाहिए कि जो रेन वाटर को एब्जॉर्व कर सके। ये है आपका स्पंज सिटी का कंसेप्ट, कि जो आपका रेन वाटर है वो आपका सिटी एब्जॉर्व करे। मतलब जो इंफ्रास्ट्रक्चर में आप मटेरियल यूज़ कर रहे हो वो उसके अंदर ऐसे गैप्स वगैरह हों जिससे जो है पानी नीचे पर्कुलेट होके जा सके। ओके, सो दिस अलाउज फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ वाटर फ्रॉम ग्राउंड वाटर थ्रू अर्बन एंड पेरी अर्बन वेल्स। अच्छा, ऐसा क्यों है, मतलब आइडिया इज दैट वी शुड हैव अ मैकेनिज्म जिसकी वजह से ग्राउंड वाटर आपका रिचार्ज हो सके, और जब ज़रूरत पड़े तो वहाँ वो हम यूज़ भी कर सके, ठीक है ना। सो नेचुरली क्या होता था कि सोयल से जो है वाटर नीचे परमिएट होके वो आपके एक्वीफर तक चला जाता था, बट अब जो है सिचुएशन गड़बड़ होगी, क्योंकि कंक्रीटाइजेशन हमने कर दिया हर जगह। आप सड़क पकड़ लो, कुछ भी कर लो, कंक्रीट ही कंक्रीट आपको नज़र आएगा, ठीक है ना। अच्छा, सो ये जो है समस्या है, इसको हम दूर कर सकते हैं। हमें ग्रीन स्पेसिस बढ़ाने पड़ेंगे सिटी के अंदर। ओपन ग्रीन स्पेसिस अगर आप बढ़ाओगे तो वहाँ से जो है पानी नीचे जाएगा ही जाएगा, ठीक है ना। सो ये हमें करना है। एंड देन वेटलैंड प्रोटेक्शन, वो तो हमारा एम्फेसिस है ही, ठीक है ना। तो ये आपको एरियाज जो है
संभालने पड़ेंगे और उससे हमें बेनिफिट भी होगा। अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर इकोसिस्टम अच्छा होगा, बायोडाइवर्सिटी को एक तरीके से वो भी अच्छी हो जाएगी। ओके, फिर रिक्रिएशनल अपॉर्चुनिटीज़ होगी, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ होगी, आप अलग अलग जो है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ यहाँ कर सकेंगे। एंड फॉर दैट वी कैन यूज़ अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, और बाकी जो हृदय जैसी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं उसका हमें यूज़ करना चाहिए। स्मार्ट सिटी मिशन वो हम यूज़ कर सकते हैं। ओके, एंड फर्स्ट स्टेप इज़ टू हैव अ वेटलैंड पॉलिसी। ये तो हमें ज़रूर करनी पड़ेगी कि वेटलैंड को अच्छे से प्रोटेक्ट करना ही करना है। दे प्ले अ वेरी क्रिटिकल रोल और हमें उनको संभालना पड़ेगा ही पड़ेगा। ओके, सो रिगार्डलेस ऑफ द ओनरशिप, कोई भी ओनर हो किसी भी चीज़ का, थिंग्स हैव टू बी रेगुलेटेड। ओके, हमें रेगुलेटेड मैनर में चीज़ों को आगे लेके जाना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ बढ़ना है। एंड वाटरशेड मैनेजमेंट इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो इमरजेंसी ड्रेनेज प्लान होना चाहिए कि एकदम बारिश हो गई तो कैसे आप ड्रेनेज को फैसिलिटेट करोगे ताकि पानी जो है वो सिटी के अंदर खड़ा ना हो और बाहर निकल जाए। ओके, सो ये कुछ चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं। एंड वी नीड टू कंसिडर द नेचुरल बाउंड्रीज सच एज वाटरशेड इंस्टेड ऑफ गवर्नेंस बाउंड्रीज। ओके, होता क्या है कि नेचुरल बाउंड्रीज को आपको समझना पड़ेगा। मीन्स योर प्लानिंग of scheme and implementation of scheme is as per the natural boundaries। ये आपके गवर्नेंस मॉडल के अकॉर्डिंग नहीं होनी चाहिए, जो नेचुरली चीज़ें हैं उसके अकॉर्डिंग जो है आप चीज़ों को करेंगे। ओके, सो ये सारी चीज़ें हैं जो हमें करनी है। एंड डिफरेंट एजेंसीज, मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, दे शुड बी इन्वॉल्व। ओके, उनको सबको साथ में लेके काम करना पड़ेगा। होलिस्टिक इंटीग्रेटेड मैनर में हमें बात करने की जरूरत है विद सिविल सोसाइटी पार्टिसिपेशन। ये चीजें करो यहाँ, तभी जाके आप इस समस्या को दूर कर पाएंगे। ओके, सो जो लैंड यूज एक तरीके से हो रहा है उसके लिए आपको प्लानिंग अच्छी करनी पड़ेगी, अर्बन प्लानिंग अच्छे से करनी पड़ेगी। और जो ये टेरेन ऑल्टरेशन है इसको रोकना पड़ेगा। ओके, इसको रेगुलेट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि डेवलपमेंट के नाम पे आप हर जगह जो है रियल एस्टेट और बाकी सब कर रहे हो और बाकी वेटलैंड्स को ख़त्म कर रहे हो। ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। थिंग्स हैव टू बी रेगुलेटेड। ओके, सो टू इम्प्रूव द सिटीज कैपेसिटी टू एब्जॉर्ब वाटर, न्यू पोरस मटेरियल जो मैंने आपको बताया था, नई टेक्नोलॉजी जो है वो हमें लेके आनी चाहिए। ओके, उनको एनकरेज करना चाहिए। एंड यहाँ पे एक एग्जांपल है बायोस्वेल्स। ओके, बायोस्वेल्स क्या है? चैनल्स डिजाइन टू कंक्रीट एंड टू कन्वे, टू कंसंट्रेट एंड कन्वे द स्टॉर्म वाटर रन ऑफ वाइल रिमूविंग डेब्रिस एंड पोल्यूशन। ओके, सो ये हमें करना चाहिए, ठीक है ना। और इससे ग्राउंड वाटर डिस्चार्ज भी होता है। तो बायोस्वेल का आप जो है एक बार जाके सर्च करना और उसकी कुछ पिक वगैरह देखना, फोटो वगैरह देखना। ओके, तो आपको क्लैरिटी से समझ आ जाएगा व्हाट बायोस्फीयर इज एग्जैक्टली। एक तरीके से चैनल वगैरह ये बना देते हैं इसके अंदर। ओके, जिससे आप रेन वाटर को, स्टॉर्म वाटर को एक तरीके से रेगुलेट कर सकते हो, अपने मर्जी के अकॉर्डिंग डायरेक्ट कर सकते हो। ओके, ये आपको करना पड़ेगा, ठीक है ना। परमिएबल मटेरियल यूज़ करना पड़ेगा रोड कंस्ट्रक्शन में। ड्रेनेज सिस्टम को अच्छे से और बनाना पड़ेगा ताकि वो ग्राउंड वाटर को रिचार्ज कर सके। ओके, ये हमें करना है, ठीक है ना। सो हर जगह अलग अलग जगहों पे इसको इम्प्लीमेंट करेंगे आप। ओके, जो परमिएबल मटेरियल है उसको आपके बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, और वहाँ पे भी ओपन स्पेस थोड़ा होता है, मेक श्योर दैट थोड़ा ओपन ग्रीन स्पेस भी हो। और नहीं हो पाता तो मटेरियल इस तरीका का हो कि जो पानी है जो है वो नीचे तक जा सके। देन एक्नॉलेजिंग द रोल ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो सिविल सोसाइटी को आपको इन्वॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है ना। और बिना उसके आप ये नहीं कर सकते। ओके, ह्यूमन कंडक्ट को बेसिकली आपको रेगुलेट करना ही करना पड़ेगा, ठीक है ना, स्टेट की हेल्प से, डिफरेंट एजेंसीज की हेल्प से। अदरवाइज सिचुएशन एज इट इज़ चलती रहेगी और एक दिन लाइक वी ऑल आर फेसिंग दिस प्रॉब्लम। एंड ये हमारे सिटीज़ को जो है एक तरीके से जो डेवलपमेंट हमने अब तक की है उसको रिवर्स कर देती है। ओके, तो उसे हमें हर हालत में रोकना है, ठीक है ना। सो ये आपको करना पड़ेगा स्पंजीनेस के नाम पे, ठीक है ना। ग्रीन स्पेसेस बढ़ाओ आप ताकि वहाँ से पानी नीचे जा सके। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे एंड वी आर एंडिंग दिस सेशन. Okay, so this is the recorded lecture that you will get today. Okay, because there was some technical glitch and we couldn't put on the live session today. So have a nice day. Thank you.